Okay, so let me just start. Okay, now kids, first of all, I don't know who asked this question. I was a bit surprised, when I saw this question. क्योंकि ये तो क्वेश्चन इतना सिंपल सा क्वेश्चन है जो शायद मैंने क्लास में भी करवाया है. It has a common root, but I think you can check it out. Does it have imaginary roots? What is b square minus 4ac? Is it negative? Yes, sir. है ना, तो इसका b square minus 4ac नेगेटिव है, तो इसके दोनों रूट्स इमेजिनरी है, हाँ क्या नहीं? दोनों रूट्स इमेजिनरी है क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. एंड इमेजिनरी रूट्स कम इन कॉन्जुगेट पेयर्स, हाँ क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो भाई दोनों रूट सेम होने चाहिए, तो बोथ द रूट्स आर सेम, एंड इफ बोथ द रूट्स आर सेम आई कैन स्ट्रेट अवे कंपेयर द रेशियो ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स. इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. ओके, तो बेसिकली ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन था जो क्लास में करवाया मैंने आप लोग को. ओके, आगे बढ़ते हैं. If one root of this equation be double the other, and if L is real, then show that. Okay, see, this is L minus M into x square. 1 minute. This is L minus M into x square plus Lx plus 1 equal to 0. Now here they are saying one root is double the other. ठीक है? So it means what I'm having here is alpha is twice of beta. चलेगा? One root is double the other. Is it okay, kids? Okay. Yes, sir. Okay. Next, what else I can say? Sum of the roots I know. Sum of the roots is given as minus b by a, and the product of the roots is given as c by a. So these are the basic things which I already know. So what I'm going to do is I'm going to put this guy here and I'm going to put this guy here and see what happens. Alpha is twice beta. So I get twice beta plus beta. So I get twice beta plus beta. So I get thrice of beta is minus L upon N minus M. So I get beta as minus L upon 3 times of L minus M. That's what I've got. Similarly, alpha is twice beta, so यहाँ पर आएगा twice beta. Twice beta, beta becomes twice beta का square. And I'm putting alpha as twice beta. Okay, now I'll put this beta here. See what happens. I get twice of minus L upon 3 times of L minus M, the entire square equal to 1 upon L minus M. So I get L square. In the denominator, I get 9. This is L minus M the whole square equal to 1 upon L minus M. Now, one L minus M will get cancelled because L minus M is not 0. Why it is not 0? X square ka coefficient is L minus M. And if it's a quadratic, then L minus M cannot be 0. That's why you can cancel one term. And then what do I get is I get twice of L square is equal to 9 times of L minus M. So twice L square minus 9L plus 9M is equal to 0. Is it L ka quadratic? Is it L ka quadratic? Yes, sir. Yes, sir. And now यहाँ लिखा है if L is real. So if L belongs to real number, then automatically इसका discriminant should be greater than or equal to 0. Do you agree? Because L is real, हाँ क्या नहीं? Yes, sir. So b ka square, b square minus 4ac should be greater than or equal to 0. It is so clear. I'll go to the next slide. I get 81. 4 2s are 8. 8 9s are 72. Minus 72m greater than or equal to 0. So 72m less than equal to 81. So m is less than equal to, of course, it will be 81 by 72. So I think it is pretty clear. Answer has to be m is less than equal to 9 by 8. Is it clear for all? You can check this out. This was the condition given. Sum and product I knew.
I plugged in alpha here, and I got beta from here. I put beta here also, and then get L ka quadratic and then discriminant. Is it clear? Is it clear, kids? Is it clear? Yes, sir. Yeah. चलो आगे बढ़ते हैं. 33rd. चलो ठीक है. The roots of this equation are equal in magnitude but opposite in sign. They are opposite in sign. Then show that p plus q equal to 2r and the product of the roots is something. Now this is not at all a difficult problem. Just cross multiply. I mean to say take an LCM. X plus q plus x plus p upon x plus p into x plus q is equal to 1 by r. I'm just cross multiplying it. I get 2x plus p plus q. Now shift that r there, and this becomes x into x becomes x square. Qx px. So I'll take x common. So p plus q and pq. Now I'll shift this guy inside and let me see what happens. I get 2rx. This is p plus q into r. X square plus p plus q into x. So I can shift this guy there. So I get x square. Oh, mean Jen. What happened? Who's there? P plus q. I can shift this guy there on the right hand side. So p plus q minus 2r into x. Okay, and I can shift this guy there. I get pq. This guy goes there on the right hand side. I get minus of p plus q into r. Now check this out. Is it quadratic in x, kids? Is it quadratic in x? Yes, sir. So पढ़ो क्या लिखा है? Equal in magnitude, opposite in sign. मतलब क्या होता है? Roots are equal in magnitude but opposite in sign. Is it okay? Is it okay? Yes. So sum of the roots becomes straight away 0 है ना? Alpha plus beta 0 हो जाएगा. और sum of the roots क्या होता है? Minus b by a. Minus of b by a होता है ना? और आपका b यहाँ पर क्या? ये पूरा b है आपका. So minus of b by a आपका 1 है. तो हमें मिल रहा है p plus q minus 2r equal to 0. So automatically जो आपको मिलेगा वो है p plus q equal to 2r. तो देख लो ये वाला पार्ट हमारा हो गया यहाँ पर. ये वाला पार्ट. नेक्स्ट पूछा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू व्हाटएवर. ठीक है, वो भी कर लेंगे. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गिवन एज? अल्फा बीटा. वो तो मुझे ही पता है. मैंने बोला उसका आंसर क्या है? square is equal to c by a. या सी बाय है. ठीक है. सो अल्फा इंटू बीटा आपका होता है सी अपॉन ए. ये आपका सी है. ठीक है, दिस इज सी एंड ए आपका 1 है. सो बेसिकली हमें जो मिलेगा वो है सी बाय ए. पी क्यू माइनस p plus q r minus p plus q r c product alpha into beta. Okay, sorry क्या दिया है? c by a ना. c by a आपका 1 है. okay, so I think I'll just write it down. so alpha beta का जो वैल्यू मिला मुझे वो है pq minus p plus q into r. ये मेरे को आंसर मिला है. ठीक है, चलो अभी एक काम करते हैं. बट लुक एट द आंसर. क्या आंसर दिया उन्होंने? हाफ ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. ये आपका आंसर है. तो एक काम करते हैं. ओके किड्स, व्हाट इज आर का वैल्यू फ्रॉम हियर? फ्रॉम हियर व्हाट इज आर का वैल्यू? p plus q by 2. p plus q by 2. ठीक है, तो लेट्स पुट इट देयर. So in place of r, I'll put this as p plus q upon 2. Cross multiply. Twice pq. This becomes p plus q the whole square upon 2. 2 pq
This is p square plus q square plus 2pq upon 2. Twice pq minus p square minus of q square minus of 2pq upon 2. ये कैंसिल हो गया तो फाइनली आपको जो आंसर मिला वो माइनस कॉमन, यू गेट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2. और ये आपका वही है जो आपको प्रूव करना था. देख लो, माइनस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2. इज इट क्लियर? आ गया ना ये वाला? इज इट क्लियर फॉर ऑल? Yes, sir. ओके, तो ये है आपके सामने. हमेशा आपको घर पे थोड़ा हाथ पैर मारना है. यू शुड नॉट डिपेंड कंप्लीटली ऑन मी. आपको खुद ट्राई करना है. एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, थोड़ा सोचो, थोड़ा रिवाइज करो क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, तभी जाके आंसर्स आएंगे. If you purely depend upon me, then I may solve the answer for you, but in exam you'll have a tough time. चलो, one root of this equation be reciprocal of the other root. एक रूट ऑफ द इक्वेशन क्या है? बी द रेसिप्रोकल. मतलब क्या मालूम है? सपोज ये आपका इक्वेशन है. ओके, ये दोनों इक्वेशन, एक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दूसरा है ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन. क्या इसका मतलब क्या है? वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट. इसका मतलब क्या है? A is equal to C. क्या बोल रहे हैं? So we can take A is equal to C. वो तो ठीक है, लेकिन आई थिंक हम लोग एक काम करते हैं ना. सपोज अगर इसका रूट समथिंग है तो इसका रूट इज 1/z समथिंग. हाँ के नहीं? हाँ के नहीं किड्स? Yes. तो मैं काम करता हूं. I'll replace x with 1/x. Do you remember when I finished this chapter? When I'm finishing this chapter towards the end, I was saying if one root is square of other, if one root is 3 times that other. लास्ट में पीपीटी सबसे लास्ट में डिस्कस किया था. अगर ये रेसिप्रोकल है तो एक काम कर लो, अगर आपको सेम बनाना है, आइडेंटिकल बनाना है, देन रिप्लेस x विद व्हाट, यू नो, 1/x. आप x को 1/x से रिप्लेस करो तो आपको मिलेगा a1 अपॉन एक्स स्क्वायर b1 upon x plus c1 equal to 0. You take an LCM, a1 b1x plus c1x square. तो आपको यहां से इक्वेशन मिलेगा, वो है a1x square plus b1x, है ना, c1x square plus b1x plus a1 equal to 0. अब kids, don't you think equation 1 and 2 are it's like they are like it's like one root common? I can say at least one root common. Why? मैंने क्या किया, जब भी अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप करना है जिसका रूट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट, तो क्या करने का, आप इसको x को 1/x से रिप्लेस कर दो. इससे ये जो इक्वेशन मिलेगा और ये जो इक्वेशन मिलेगा, दोनों के पास कॉमन रूट हो जाएगा, वन कॉमन रूट, बिकॉज दे आर लाइक नाउ आइडेंटिकल टाइप, दे आर आइडेंटिकल इक्वेशंस. कॉमन रूट हो जाएगा, वन कॉमन रूट. हाउ? अरे मेरे भाई, अगर ये अल्फा है ना, ये अगर अल्फा है, ये अल्फा आ रहा है, ये अल्फा आ रहा है, तो ये 1 अपॉन अल्फा है. तो मैंने क्या किया, इसको 1 अपॉन अल्फा है ना, तो मैंने x के बदले 1 अपॉन अल्फा लिखा. समझ रहे आप लोग को? डू यू अंडरस्टैंड? Yes. So see now don't you agree this equation 1 and 2 are like equation with one root common? Do you agree now? Yes, sir. So if one root is common, did I give any condition based on one root? क्या मैंने कुछ कंडीशन दिया है बेस्ड ऑन वन रूट? कुछ दिया है क्या मैंने? Yes. Based on one root. Did I give any condition? Yes, sir. Bigger cross product, the whole square equals to product So the of bigger smaller. cross product will be a1 minus c1 the whole square equal to, equal to smaller cross product, that is a b1 minus b c1,
into a1b minus cb1 और चेक करो, मैच करवाओ bc1. ओके, इसको हम उल्टा लिख देंगे, ठीक है, तो इसको उल्टा लिखेंगे, ये इसको ab1 है ना, हाँ उल्टा लिख देते हैं. तो अगर उल्टा लिखा तो यहां पर आएगा bc1 माइनस ab1, यहां से भी माइनस कॉमन निकल के उल्टा लिखेंगे तो यहां पर आएगा, क्या आएगा पता है, यहां पर आएगा b1c माइनस a1b, है ना, तो यहां से भी उल्टा लिखा, यहां से उल्टा लिखा, माइनस में बिकम्स प्लस. नाउ चेक इट, इज दैट ट्रू? चेक कर लो, इज दैट ट्रू? Yes, sir. ओके, सो किड्स अगेन, ये क्या फंडा था, अगर सपोज इसका रूट है अल्फा तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो जो इसका रूट क्या है 1 अपॉन अल्फा, तो मैंने कुछ किया ही नहीं रे बाबा, मैंने x के बदले 1 अपॉन अल्फा लिख दिया. तो मैं वही तो बता रहा था आपको खाली x को 1/x लिखना है और कुछ नहीं, तो 1 अपॉन अल्फा लिख दिया. अभी दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वेशन लाइक आइडेंटिकल इक्वेशन विद 1 कॉमन रूट बोल सकते हैं, है ना, एंड दैट्स व्हाई आई कैन स्ट्रेट अवे यूज दैट कंडीशन ऑफ 1 कॉमन रूट and then I get the answer. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. चलो ठीक है. $39th problem. Now I think ये वाला प्रॉब्लम आई थिंक आना चाहिए था, क्योंकि इट वाज बेस्ड ऑन द कंडीशन, लोकेशन ऑफ द रूट्स वाला कॉन्सेप्ट था. ये क्या लिखा है, for which one root of this quadratic exceeds 2 and the other root is smaller than 2. Okay, now this is such an easy thing. See, x per coefficient is positive, so the curve is turning upwards. तो अगर हम 2 को यहां लिख देते हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है, आप देख लो, भी आपको शायद समझ जाएगा. एक रूट आपका 2 से बड़ा है और एक रूट आपका 2 से छोटा है. इज इट ओके? One root more than 2 and other root less than 2. Is it okay? Yes, sir. And now once I do this, I think I don't have to explain you people now. What will be f of 2? Positive ke negative? Negative. Negative. Now just put x ke badle 2 here. Just put x ke badle 2. See what will happen. 2 ka square is 4. X ke badle 2. K square plus k minus 8 less than 0. So I get 4 minus of 2k minus of 2. K square plus k minus 8. So I get k square minus 2k plus k gives you minus k. 4 minus 2 gives you plus 2. Plus 2 become minus 6. So now I can straight away use my wavy curve here. Of course, before that, yeah, I can add this as minus 3 and plus 2. चलेगा ना kids? चलेगा, Yes. है ना, minus 3 plus 2. So बस 3 यहाँ पर आ गया आपका minus 2, and I think we'll know the answer. What is the answer finally? K belongs to what? Between minus 2 to 3. Is it done for all? Is it done? Yes, sir. चलो ठीक है. ये थोड़ा सा ब्लर है, ओके, बट आई थिंक वी कैन स्टिल मैनेज. आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ax x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, और उन्होंने क्या बोला है, a और b इसके रूट्स है. तो इसके रूट्स क्या है, रूट्स, हाँ रूट्स, रूट्स क्या है, a एंड b इसके रूट्स है. पूछा है द लीस्ट वैल्यू, पूछा उन्होंने, इसका लीस्ट वैल्यू पूछा है. किसका? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी का उन्होंने लीस्ट वैल्यू पूछा है. ठीक है. Now of course we know sum of the roots is given as minus b by a and the product of the roots is given as c by a. Is it okay kids? Okay. Yes, sir. So I get 2a plus b equal to 0. Also, they mention a and b are non-zero guys and different. They are non-zero.
नॉन जीरो मतलब can I cancel b kids then? हाँ के नहीं? Yes, Yes, sir. sir. तो आपका a 1 हो गया. तो अगर a 1 है, I can put a का value here, so I get 2 plus b equal to 0. So I get b का value as -2. That's it. So I've got a quadratic. What is the quadratic? So finally my quadratic is, okay, I'll just write f of x. It is x square. आपका a का value 1 है, आपका b का value -2. तो ये आपका quadratic बन गया. आपको इसका least value find करना है. Can we find इसका least value now? Yes, sir. Complete the whole square. You've done so many times, na? X plus half the whole square minus 1 by 4 minus 2. So x plus half the whole square. This becomes what you know, minus 9 by 2. Chalo, what is the minimum value of this guy? What is the minimum value? Hey, minus 9 by 4, sorry. Okay. इसका minimum value क्या हो गया किस फिर? -9/4. Of course, minus 9 by 4 because this will be minimum when this is 0, ना? इसको 0 होना पड़ेगा. Okay, तो minus 9 by 4 is the minimum value. ठीक है. Okay, so I think again it was a okay problem. Okay. Okay, now this is also similar category. Some people may be knowing. Okay, पहली बात, look at this quadratic guy. Y is equal to minus. See, अगर x square का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो कर्व का नेचर पता चल जाता है. कर्व का नेचर कुछ ऐसा होगा, है ना किड्स? अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. तो इसका मैक्सिमम वैल्यू भी पॉसिबल है, मिनिमम पॉसिबल नहीं है. हाँ के नहीं किड्स? We can get the maximum value, we cannot get the minimum value will be negative infinity, है ना kids? Yes, sir. So automatically your if y then max value of y, max value मिलेगा, min value नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन आपके ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाते हैं. So we need to deal with the max value now. I think some of you all can do it directly. Max value, where does it occur? This is minus b by 2a at x equal to minus b by 2a, and what is the height? Minus d by 4a. याद आया क्या? Minus d by 4a. Yes, sir. So you can directly say the max value is minus d by 4a. The max value is minus d by 4a, and d तो सबको पता है. तो आप इसे डायरेक्टली भी करोगे तो भी चलेगा. आपका b क्या है? आपका b है -6 become +6. आपका a क्या है? a आपका -2 है. तो आपको जो मिलेगा वो है -3 by 2, जिसका मतलब होता है -1.5. तो -1.5 के आपको मैक्स वैल्यू मिलेगा. तो -1.5 पे मैक्स वैल्यू मिलेगा. तो आंसर हैज टू बी ऑप्शन सी ओनली, है ना किड्स? विदाउट सॉल्विंग यू हैव डन इट, है ना? So, या is it possible if we substitute the values? Hey, don't do that ना आयुष. इतना कुछ सिखाया है तो आप वैल्यू क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यार? हाँ ऑप्शन नहीं बट क्रॉस चेक करने के लिए See, substitute. you can do anything. End of the day, you do anything. But what I want to say is that ki, we have learned so many things. Why should we use that option? Using option and getting the answer is the worst method for any entrance examination. This should be the last thing you can do if you don't know anything. Yeah, sometimes option can help you, but option से नहीं करने का. अच्छा, okay sir. ठीक है? Understand. ऑप्शन से जो बच्चा करता है समझ जाना उसके फंडामेंटल सबसे गंदे हैं. ऑप्शन से करने का हाँ कभी कभी ठीक है, लेकिन एग्जामिनर भी बहुत स्मार्ट होता है. उसको भी पता है कि बच्चे ऑप्शन यूज करते हैं. 60% बच्चे ऑप्शन यूज करेंगे, 60 to 80%. तो एग्जामिनर कभी ऐसे ही ऑप्शन देगा जहां से आप ऑप्शन यूज ही नहीं कर सकते. ठीक है? Okay. तो ये आप Yes, sir. हो जाता है और मैक्स वैल्यू मिल सकता है ना ऐसा करके. बट व्हाट इज अदर मेथड? आई थिंक आई हैव टॉट यू ऑल द ऑर्थोडॉक्स मेथड. कैन यू डू कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर किड्स? Yes, sir. Okay, so I've taken -2 common. Since I took -2 common, I got this. Now let's complete the whole square. It's x plus 3 by 2 the whole square. Nine by 4 minus 9 by 2. X plus 3 by 2 the whole square. यहाँ पर आएगा कितना पता है? ये 2 यहाँ जाएगा, becomes 18, 27 by 4 हो जाएगा. तो ये 2 जब अंदर जाएगा तो आपको मिलेगा कितना मालूम है? 27 by 2 minus of 2 times of x plus 3 by 2. Now I think I don't have to teach you all. When will be y maximum? What is y का max value? When this is minimum, है ना kids?
हाँ कि नहीं? Yes, sir. And so 27/2 is the max value at x plus 3/2 equal to 0, which means or x should be minus of 1.5, है ना, minus of 3/2. ये आपका मैक्स वैल्यू हो जाता है. आई होप ये क्लियर है. Yes, ये sir. सब करने के देखिए एग्जामिनेशन हॉल में ना आपको कम से कम टाइम लेना है. तो यहाँ पर तो पहले तो देख के पता चल गया मिनिमम पॉसिबल नहीं है, और ये खाली वर्टेक्स से ही पता चल जाता है यहाँ पर ही आंसर आना चाहिए. तो खत्म काम, फटाफट करने का. See, the deciding factor in examination is all about, how smart a person is and how fast he's able to get the answer. People might be knowing the problem, how to solve, but if they get stuck in some lengthy problems, then you are gone for a toss. Aapka khatam. You cannot get a good college. So you really have to be smart enough, कि क्या करना है क्या नहीं करना examination hall में. मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, पता है, हमेशा मैं आप लोग को भी बोल रहा हूं. आपने बहुत सारी स्टोरीज सुनी होगी कि लोगों को 99 परसेंटाइल आया है, किसको आईआईटी मिला है, किसको टॉप एनआईटीज मिला है, किसको ट्रिपल आईआईटी मिला है, किसको बिट्स मिला है. वो बच्चे और आपके में, आप लोग में फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही फर्क होता है. वो बच्चे इतने स्मार्ट है, उनको पता है कि कौन सा सम डिफिकल्ट और लेंदी है, और उसको वो हाथ नहीं लगाते हैं. एंड दे प्ले अराउंड विद इजी टू डिफिकल्ट क्वेश्चन. इफ एनीबडी वांट्स टू गेट इनटू आईआईटी, द टॉप 5 और टॉप 7 आईआईटी, if he's able to attempt only easy to moderate question, I guarantee he can get into IIT. अगर IIT आपका ड्रीम है भी नहीं तो भी आपको टॉप NITs या ट्रिपल IITs मिल जाएगा. You will get 99 percentile if you can attempt easy to moderate questions only. But the problem is people try attempting or touching those questions which are either very lengthy or very difficult, and there where they spend a lot of time and they miss upon the easy question. That's why I tell people, learn the art of leaving. You know what is the art of leaving? What is leaving? What is the art of leaving? Not attempting. छोड़ने का आना चाहिए. Leave, art of leaving मतलब अपना ईगो साइड में करो. अभी कुछ बच्चों में बहुत बड़ा ईगो होता है. उनका ईगो क्या, ईगो प्रॉब्लम है. ईगो प्रॉब्लम क्या है? They think, अरे I am so smart, I am the first ranker, the second rank of my school. How the hell I cannot solve this particular problem? मैं तो उसकी बजा के रहूंगा, मैं तो सॉल्व करके रहूंगा. जिन बच्चों में ऐसा ईगो है ना, उनकी एग्जामिनेशन में बैंड बजती है. वो ईगो घर तक ठीक है, घर पे जब होमवर्क प्रैक्टिस करते हो, एग्जामिनेशन हॉल में वो ईगो घर पे छोड़ के आने का. बिकॉज जो एग्जामिनेशन पेपर सेटर होता है ना, ही नोज हाउ टू क्रश योर ईगो. सो लर्न द आर्ट ऑफ सॉल्विंग इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन. मैं जबान देता हूं, पीपल विल गेट 99 परसेंटाइल. द प्रॉब्लम इज पीपल, मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट एबल टू डू दैट. चलो ठीक है, लेट्स गो अहेड. Log of 3x minus 1 upon x plus 2. Okay. Now they are saying it is less than 1. है ना kids? है ना, less than unity चलेगा? अरे हाँ के नहीं? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Now look at the base. Is the base between 0 to 1? Yeah. So what should happen to the inequality? Should it change? Change. Yes. Yes, it should change. Yeah. So 3x minus 1 upon x plus 2 and 1, sorry. This is 1/3, yeah. थ्री शिफ्ट करना, 9x है ना, यहां पर आ जाएगा 9x, और आई कैन जस्ट स्विच दिस गाय देयर आल्सो. ठीक है जी, जाने तो सीधा कर लेते हैं. 1/3 को मैं शिफ्ट कर लेता हूं. ठीक है, फिर हम उसको वेवी कव करेंगे. चलो 3/x minus 1 upon x plus 2, ये आपका -1/3 हो गया. सो यहाँ पर आ गया 9x minus 3 minus x minus 2, नीचे आएगा thrice of x plus 2. So 9x minus x becomes 8x. This is -5 upon x plus 2. आपका ये हो गया greater than 0. Is it okay, kids? Is it okay? Yes, sir. Can I use a wavy curve here? I think everybody knows, right? How to do the wavy curve? So it will be 5/8, and this has to be what? -2. तो मुझे क्या मिल रहा है वो देख लेते हैं.
मुझे मिल रहा है ओके पॉजिटिव चाहिए तुझे, मुझे क्या मिल रहा है यहाँ से x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन क्या आ रहा है 5/8 टू इन्फिनिटी. इज इट ओके किड्स? इज इट ओके? Yes, sir. ओके लेकिन और एक चीज हम करना भूल गए हैं. लॉग के अंदर जो बंदा होता है वो कभी नेगेटिव होता है क्या? इज इट ऑलवेज पॉजिटिव किड्स? अरे हाँ क्या नहीं? Yes, sir. सो उसका भी ध्यान रखना है हमको ना. ये हमारे बाजू में इट शुड बी एट द बैक ऑफ द ब्रेन. 3x - 1 अपॉन x + 2 आपका हमेशा 0 से ज्यादा होगा. तो अगर हम वेवी कर्व करते हैं तो हमें मिलेगा 1/3 एंड -2. तो मेरा जो भी आंसर होगा वो इसके बीच में ही होना चाहिए. -∞ to -2 यूनियन 1/3 टू इन्फिनिटी. और आप चेक कर लो दिस आंसर डज बिलोंग टू दिस इंटरवल. चेक इट आउट. इज दैट ट्रू? नो 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 एक मिनट. 5/8 हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. So does this red part belong to the green part only? Yes, sir. है ना. So this red part belongs to the green part. This is my main domain. मेरा main domain है. तो मेरा जो भी आंसर होगा वो इसके अंदर ही होना चाहिए और ये बंदा इसके अंदर ही है. तो आपका आंसर क्या हो गया फाइनली? ऑप्शन ए. इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो अच्छी बात है. Yeah. The set of all the solution of the inequality, this is log of x minus 2 upon 1 minus x greater than or equal to -1. बेसिकली ये बेसिक आपका क्वेश्चन है. देखो कुछ भी करने के पहले एक बात तो सबको क्लियर होगी कि आपका जो लॉग के अंदर जो बंदा होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है. इज दैट ट्रू किड्स? तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो इसके अंदर ही होना चाहिए, अदरवाइज एक्सेप्टेबल नहीं होगा. अब चलो देखो बेस में प्रॉब्लम है. सो इसको मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. बेस क्या हो सकता है? बेस कैन बी इधर बिटवीन 0 to 1 or the base can be will be greater than 1. Do you agree kids? हाँ क्या नहीं? अरे लोग किधर गए? So actually, Yes, it should be null set only, not directly. Yeah, I know. Okay, but I'm just explaining only. I know that it's gonna be null set only. Yeah, ठीक है. So kids यहाँ देख लो. यहाँ पर अगर हम subtract by 1 के तो यहाँ पर आएगा -1 less than -x less than ना subtracting by 1 तो यहाँ पर 0 आ गया. If I multiply by minus sign here, तो automatically I get 1 greater than x greater than 0. तो आपका x किसके बीच में होना चाहिए? 0 और 1 के बीच में होना चाहिए. ओके लेकिन x तो 2 से बड़ा है तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कंडीशन. सिमिलरली है ना किड्स? इज इट ट्रू? अरे इज दैट ट्रू? Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पर आएगा x -1 greater than x है ना. शिफ्टिंग दिस गाय इन हियर. तो x should be less than 0. लेकिन x 0 से कम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका ये तो प्राइमरी कंडीशन है मेरा. तो ये भी ट्रू नहीं है. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते तो होने ही वाला था किड्स. यहाँ क्या बोल रहा है? x 2 से बड़ा होना चाहिए. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? अगर x 2 से बड़ा होगा तो व्हाट विल हैपन टू द बेस? Negative. तो प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर. तो आपका अगर x 2 से बड़ा है तो बेस तो हमेशा नेगेटिव ही रहने वाला है और वो नेगेटिव तो नहीं चलेगा ना. दैट्स व्हाई इवन इफ ऑफ कोर्स if suppose I don't solve the problem, if I don't take these cases and all also, just by at a glance a person can tell me at a glance that आपका x तो 2 से बड़ा होना चाहिए. लेकिन अगर x 2 से बड़ा होगा तो ये तो नेगेटिव हो गया. तो straight away I can say answer is a null set. Is it okay? Yes, sir. चलो अच्छी बात है. Question number 75 is there here. इसमें तो बहुत अंदर लॉग के अंदर लॉग है. तो विल डू इट केयरफुली. ठीक है. Here the base is 5. Here the base is 0.5. Log of 1. This is 0.5. Now see, I'll start taking one by one. सबसे पहले हमको सब कुछ देखना पड़ेगा और सब सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा. पहला लॉग के अंदर जो बंदा होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है. इज दैट ट्रू? Hey, is it okay? Yes, sir. Yes, sir. We know x belongs to what? -∞ to -2 union 2 to infinity. Is that true?
Yes, sir. गुड. उसके बाद और क्या है मेरे पास, वो है log ऑफ. ये टर्म भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. डू यू एग्री? हाँ कि Yes, नहीं? sir. तो चलो यहां से भी और एक कंडीशन आ रहा है, वो भी ध्यान देना पड़ेगा. वी टू बी वेरी मच केयरफुल. तो ये जो बंदा दिख रहा है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू द बेस 5, उसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा, जिसका मतलब ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 5 रेज टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 1. सो एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 5. सो नाउ आई थिंक एवरीबॉडी शुड बी स्मार्ट इनफ. आप देखो ना, पता है काफी बार बच्चे बोलते हैं कि सर हम लोग स्कोर नहीं कर पा रहे हैं एग्जाम में, या हम नहीं कर पा रहे. देखो कुछ बच्चे, देखो आज हमारे सेशन में देखो कितने बच्चे गायब हैं. इसलिए बोलते हैं, पता है क्या कहते हैं कि हम हमारा फ्यूचर की कबर अभी से खोद रहे हैं. Some people they don't do their homework, they don't attend the route solving also, and then after some time they'll start complaining कि I'm not scoring marks, and parents are worried कि बच्चा स्कोर नहीं कर पा रहा है. रीजन क्या? उसके पीछे रीजन ये है कि अगर बच्चा किसी सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा, टीचर का काम नहीं करेगा, तो ही विल नेवर बी सक्सेसफुल. तो अगर आपको मैं कुछ काम देता हूं, अगर आप वो काम नहीं करोगे ना, तो मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, आपको ऊपर वाला भी मदद नहीं कर पाएगा. So that's why now see some people are not, so many of them have not come to the class only. This simply proves that उन्होंने as far as your JEE का performance is concerned, उन्होंने अपना कबर खोदना शुरू कर दिया अभी से. चलो ठीक है. So this becomes x belongs to, I can write this as minus infinity to minus root 5 union root 5 to infinity. Is that okay kids? Yes, sir. देखो ये दो तो अच्छे कंडीशन मिल गया. तो ठीक है, ये तो बेसिक कंडीशन हो गया. अभी हमें इस पर काम करना है. चलो शुरुआत करते हैं. आप इन दोनों को देखो और दोनों के बेसिस सेम है ना किड्स? Yes, sir. Yes, sir. बट कैन आई से द बेसिस बिटवीन 0 to 1? डू यू एग्री? Yes, sir. तो अगर बेस 0 और 1 के बीच में है, तो डोंट यू थिंक योर इनइक्वालिटी शुड इनइक्वालिटी शुड व्हाट? Change. Change. Very good. It should change. X square minus 4. और पता है बुरा क्या लगता है किड्स? अगर आप बच्चे लोग मेहनत नहीं करते हो ना, अगर आप लोग जस्टिस नहीं करते हो ना, somehow the other you're doing injustice to your parents. Your parents are working so hard and they're paying so much of fees here, and if you people don't do justice to the subject and the teacher and your hard work, if you don't study hard na, it is such a bad thing, kids. मतलब you have no, आपके पेरेंट्स आपसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं. वो खाली एक्सपेक्ट करे कि आप ईमानदारी से, आप में जितनी औकात है उतना मेहनत करो. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वी हैव गुड इनफ, स्टिल वी डोंट वर्क हार्ड, देन इट बिकम्स सच एन इनजस्टिस टू द पेरेंट्स, कि बेचारे वो आपसे एक्सपेक्ट करते कि आप मेहनत करो और आप नहीं करते हो. कितनी गलत बात है ना. तो प्लीज आई कैन जस्ट हम्बली रिक्वेस्ट यू पीपल, 1.5 साल ना ईमानदारी से मेहनत करो, आपका लाइफ सेट हो जाएगा. यू विल गेट अ वेरी वेरी गुड कॉलेज, ट्रस्ट मी. और जब आपको बड़े बड़े पे स्केल्स मिलेंगे ना, पे पैकेजेस मिलेंगे, जब कॉर्पोरेट लेटर में बहुत ऊपर जाओगे ना, तो आपको याद आएगा कि अच्छा हुआ कि मैंने ये सब किया. और उसी जगह पे जो बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, they will be a subordinates down the line, or they may not get a good college, maybe good corporates. So please I can just request you all. See, अभी ये लोग of course मेरे साथ आर्ग्यूमेंट कर, सर ऐसा थोड़ी है, काफी लोग ऐसे भी है जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया, बहुत कुछ किया. हाँ बाबा, मैं एग्री करता हूं, but most of the time ना you will have to study hard and go ahead. Most of top notches in India or in the world are the people who, most of them belong to the lower middle class, or very poor families, or the middle class families. By studies only they went ahead in life. तो पढ़ाई करके आप ऊपर जा सकते हो. चलो ठीक है. X square less than 9. So kids, what I get, x is between what to what? -3 to 3. Is it clear, kids? Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. So can anybody tell me now what can be the answer if you all are smart enough? A. Yes, ऑप्शन ए. फिर भी अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ पड़ता है ना, तो ये क्या करने का, तीनों का कॉमन आंसर ढूंढना आपको. तो ये क्या है? -3 to 3 है. ठीक है, -3 to 3. तो मैं आपके कन्वीनियंस के लिए मैं इसको शेड कर देता हूं, जिससे आपको समझेगा क्या हो रहा है. ठीक है, ओके. सो इट्स
minus 3 to 3, you know, minus 3 to 3. I'm just shading it. Yeah, some people can do it orally only. You should do it orally only. But yeah, I'm doing it so for those people who don't understand fast. Okay, minus 2 should be somewhere here. I think you all will agree. Minus 2 should and 2 should be somewhere here. And minus root 5. Minus root 5 कहाँ पर आएगा kids? Minus root 5? Between minus 2 and Yeah, it should be minus of root 5 here. And यहाँ पर आएगा root 5. तो देखो ये क्या बोल रहा है? Minus root 5 या उससे कम, root 5 या उससे ज्यादा. ठीक है, ये ग्रीन वाला पार्ट हो गया. और ये माइनस 2 से ज्यादा लेफ्ट बोल रहा है, माइनस 2 से लेफ्ट बोल रहा है, तो माइनस 2 से लेफ्ट, माइनस 2 से लेफ्ट एंड 2 से राइट. अब आप ही मुझे बताओ तीनों कलर आपको कहां दिख रहे हैं? तीनों कलर्स कहां दिख रहे हैं आपको? तीनों कलर्स -3 to minus root 5 and है ना, root 5 root 5 to root 3, root 5 to 3 है ना. ऑप्शन ए इज आंसर है ना kids? Yes, sir. So see, I've got the answer. Yeah, it is advisable if people can do it orally. It is fantastic. Still, this is the orthodox method. Is it clear? Yes, sir. चलो अच्छी बात है. Yeah, I think we have done this. I don't know who asked me this question. I was so shocked when I looked at this sum. Did we do this sum in class? Yes, sir. What is the answer? We know that, right? None of these. None of these. No solution only. Yeah. पता नहीं जो बच्चे डाउट्स भेजते हैं वो थोड़ा चेक भी करते हैं कि नहीं चेक करते. Okay. Okay. Now, this is question number 83. Now see, there are some few more questions जो कुछ बच्चों ने मुझे पूछा था, बट वो लोग ने बहुत लेट पूछा तो मैं पावर पॉइंट बना नहीं पाया. फिर भी मैं थोड़े बहुत कर दूंगा. ओके उसके पहले कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम पूछा गया था जो आपके जेई 2017 का प्रॉब्लम है. ओके ये प्रॉब्लम इतना इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड सीक्वेंसेस एंड सीरीज, और बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम बनाया था. पढ़ लेते हैं. देखो ये क्या है एक्चुअली, ये x इंटू एक्स प्लस 1 है, फिर क्या है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ऐसे चलते रहता है. फिर ये आपका क्या हो जाएगा? जो आपका हो जाएगा x प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस n, and this is equal to 10n, है ना kids? Is it okay? Yes, sir. ठीक है. अब सवाल सर करे क्या? सी करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, मेरे पास तो अलग मेथड भी है, लेकिन आपको ऐसे नहीं लगता हम इसको कुछ कर सकते हैं? इसको मैं समेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं. कैसे? देखो x प्लस x प्लस r इंटू x प्लस r माइनस 1 लिखूंगा. वेट आई विल राइट इट डाउन. आप चेक करना, देखना मैं कैसे लिख रहा हूं, हाउ स्मार्टली आई विल डू इट. r माइनस 1 इंटू x प्लस r एंड r goes from 1 to n equal to 10n. थोड़ा सोच विचार करो. इज दैट ट्रू? 1 को पुट करो, r को 1 पुट करो तो 1 माइनस 1 0 हो गया. थोड़ा सोच विचार करो. हाँ किड्स, इफ r आपका 1 है तो 1 माइनस 1 0, यू गेट x. r 1 है तो x प्लस 1. इज इट ओके? Yes, sir. नाउ पुट r as 2, so 2 minus 1 will be 1, and यहां पर आ गया 2. इज इट ओके? ये समझ आएगा सबको? Yes, sir. Then 3, then 4, then 5, then say last में put r as n, तो n minus 1. Put r as n, तो x plus n. Did you understand? अरे did you understand? Yes, sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So now kids, I can add this as x into x becomes x square. This is rx. This is r minus 1 into x plus r into r minus 1. This is nothing but 10n. You get summation r equal to 1 to n. ये है आपका x square. ये आपका हो गया 2r minus 1 into x. ये आपका हो गया r square minus r. Do you agree kids?
Do you agree? Yes, Yes, sir. sir. Now recollect. ये summation ना अंदर जाएगा, पहली बात तो ये है. Summation का variable is r, हाँ, तो x will be like a constant. So what will happen is, just see. X square I'll take it out. Summation r equal to 1 to n 1. क्या हुआ देख लो. Summation अंदर गया, x square को बाहर निकाला, बचा 1. तो वो मैंने वहां लिखा है. Next. x बाहर आ जाएगा. आपका x बाहर आ जाएगा. Summation r equal to 1 to n 2r minus 1. देख लो. x बाहर क्यों आ रहा है? क्योंकि समेशन का r is a variable, r is changing. Since r is changing, r is a variable, so x square is a constant. Do you understand? Yes, sir. And then summation goes inside, you get here summation of r equal to 1 to n r square minus r, and this becomes equal to 10n. Does that make sense? Yes, sir. Chalo kids, try recollecting. I think some of you would be knowing. Summation of 1. याद है किसी को summation of 1? Is n. It's n. Good. Now this summation will go inside to 2 into summation of r का formula होता है n into n plus 1 by 2. Is that true? Yes, sir. And summation of 1 is n. अगर किसी को याद नहीं है तो please revise sequence and series. तो summation r हो जाएगा n into n plus 1 by 2 and summation 1 will become n. Now next, summation of r square is n into n plus 1. 2n plus 1 by 6. Summation of r square, है ना kids? Yes, sir. And summation of r will become n into n plus 1 upon 2. This becomes a 10n. So you get nx square. Okay, 2 and 2 gets cancelled. Write it down plus nn gets cancelled. You get n square. So you get n square x. यहाँ पर भी क्या कॉमन आ रहा है? n into n plus 1 upon 2 कॉमन आ जाएगा तो आपको मिलेगा 2n plus 1 upon 3. मैंने n into n plus कॉमन तो यहाँ पर आ गया minus n. So I get nx square plus n square x plus n into n plus 1 upon 2. This 3n goes there, becomes what? So this minus 3n. Minus 3n हो जाएगा ना? I hope it's not wrong. So it should be -1, not -n. -1. कहाँ पर? Oh yeah. That's what I was wondering कि ऐसा गड़बड़ क्या लग रहा है? ये मिस्टेक हो गया मेरे से. मैंने n into n plus 1 by 2 को कॉमन निकाला तो यहाँ पर 1 आएगा. ठीक है. तो यहाँ पर आएगा -3. तो यहाँ पर आ जाएगा 2n minus 2 upon 3. Okay, now this becomes 2 common, so I get n minus 1 upon 3 equal to 10n. ये 2 चला गया आपको, तो आपको जो मिलेगा वो है nx square plus n square x. यहाँ पर आएगा plus n into n square minus 1 upon 3 minus of 10n. Is it okay, kids? Is it okay? Yes, sir. So you can just check this out. This is what I have got. I'll just simplify this more. So I get nx square plus n square x plus n cube minus n minus 30n upon 3. So I get nx square plus n square x plus n cube minus 31n upon 3. So I have got a quadratic, kids. I'll just write it down again. nx square plus n square x plus n square x n cube minus 31n n cube minus 31n upon 3 equal to 0. ये तो खाली क्वाड्रेटिक मिला है. पिक्चर खत्म नहीं हुआ. पिक्चर तो अभी शुरू, असली सम तो अभी शुरू होगा. देखो ये तो सिंप्लीफिकेशन में इतना मेहनत लगा है. अब पढ़ो. This quadratic guy has what? 2 what? Consecutive. Consecutive का मतलब क्या होता है? Difference of 1. है ना, बैक टू बैक ना. डू यू एग्री? अरे हाँ क्या नहीं? Yes, sir. कंसेक्यूटिव है और एंड फाइंड करें तो कंसेक्यूटिव. सो लेट्स से अल्फा बीटा आर द रूट्स. सो कंसेक्यूटिव है तो मतलब दोनों में डिफरेंस कितना होना चाहिए? कितना होगा डिफरेंस दोनों में? 1. मैं मॉड लिखता हूं क्योंकि पता नहीं बड़ा कौन है छोटा कौन है. नाउ डू स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. And I can write this as alpha plus beta the whole square minus 4 times of alpha beta. Is it okay? Is it okay? Yes, sir.
Now sum of the roots is minus b, minus of b by a, and product is c by a. a आपका n है, तो आपका n और n चला गया, तो हमें जो मिलेगा वो है n का स्क्वायर, यहां से मिलेगा, -4 टाइम्स ऑफ एक n चला गया, तो आपको मिलेगा n स्क्वायर माइनस 31/3. इज इट ओके किड्स? चलेगा नहीं? n कैंसिल हो जाएगा. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. सो 3n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर प्लस कितना आ गया 124 इक्वल टू 3. So I get minus n square equal to minus 121. So n square equal to 121. So n is equal to 11. And you can check your answer. Answer is 11. I'll discuss this some once again, but I'll tell you one thing interesting. जिस बच्चे ने एग्जाम में ये सब अगर ट्राई किया होगा ना और आंसर अगर आया होगा, उसका ईगो तो सेटिस्फाई हो गया होगा, but he might have lost upon many easy questions. Do you agree? Sir, someone got 4 in 2017. Yes, sir. Why? Because it is comparatively a lengthy problem, है ना kids? Yes, sir. And you cannot use any, any random tricks, wherein you just take n ka any value, do something, or use options. How will you use options? There's no other way out. तो क्या किया मैंने, पहले इसको मैंने समेशन में कन्वर्ट किया, है ना. समेशन के लिए मैंने सोचा क्या लिखना चाहिए, तो r-1 और r लिखा मैंने. सिंप्लीफाई करके फिर ये समेशन अंदर जाता है, x कांस्टेंट है तो x बाहर आ जाएगा. फिर सीक्वेंस सीरीज का चैप्टर जो अगर पढ़ा नहीं है तो फिर गए, फिर वो सिंप्लीफाई करते बैठा मैंने. समेशन 1 is n, समेशन ऑफ दिस arc is n into n plus 1 by 2, समेशन 1 is n, r स्क्वायर का फॉर्मूला, r का फॉर्मूला. सिंप्लीफाई करने के बाद आखिर में मुझे क्वाड्रेटिक मिलता है. इतने मेहनत करने के बाद फिर जाके, अभी इतना करने के बाद भी कुछ बच्चे तो ये भी नहीं सोच पाएंगे कि अगर दो रूट्स कंसेक्यूटिव है तो डिफरेंस 1 है. वो मैंने बोला तो शायद समझा होगा, कुछ बच्चे के दिमाग में तो आया भी नहीं होगा. तो ये प्रॉब्लम हो जाता है. So that's why when you have a gut feeling कि सम शायद लेंदी होगा, तो उसको हाथ इनिशियली नहीं लगाना है. फर्स्ट यू हिट अपॉन द इजी क्वेश्चन, देन गो विद द डिफिकल्ट वन. इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो हमें ये पता होना चाहिए. उसके बाद कुछ बच्चों ने आई थिंक एक 55th क्वेश्चन किसी ने पूछा था, मैं वो लेट पूछा इसलिए मेरे पास पीपीटी नहीं है. ओके, 55th सम्स, आई विल जस्ट चेक दिस. 55th प्रॉब्लम, और कुछ 2-4 कुछ आर्काइव्स के वो भी बता देता हूं मैं. हाँ, एक 55th प्रॉब्लम किसी ने पूछा था, मैं बता देता हूं क्या था. 7x क्यूब माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, और पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा. ओके, यही क्वेश्चन था ना, आई डोंट नो किसी ने, हाँ यही है शायद 55, यही पूछा था किसी ने. ओके, अब किस देखो, ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है. उसके पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं. ये तो सबको पता है ना, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स एट अ टाइम and the multiplication of 3 roots. So sum of the roots will be 0. Do you agree? Yes, sir. Because minus b by a, और b तो यहाँ पर आपके पास 0 है ना, x स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो b आपका 0 है. अब सवाल है, काफी बच्चे सोचते सर इसका मीनिंग क्या है. मैंने आपको बताया था इसका मीनिंग क्या है, फिर मैं आपको बता देता हूँ और एक बार इसका मीनिंग क्या है. कि समेशन व्हेन आई से I'll take an क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा. ये समेशन का मतलब होता है कि आपको यही करना है 2 टर्म्स एट अ टाइम. तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अपॉन बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा गामा. इज इट क्लियर किड्स? Yes, sir. अब नाउ टेक एन एलसीएम. सो ऑफ कोर्स अल्फा बीटा गामा जो है ना मेरा बेसिकली एलसीएम हो जाएगा, तो हम यहाँ पर गामा से मल्टीप्लाई करेंगे. तो अल्फा स्क्वायर गामा प्लस बीटा स्क्वायर गामा, यहाँ अल्फा से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर आएगा अल्फा बीटा स्क्वायर अल्फा गामा स्क्वायर. यहाँ बीटा से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर आएगा बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा स्क्वायर बीटा. इज इट ओके किड्स?
Yes, sir. अब ना थोड़ा सोच विचार करना है, ये नेक्स्ट टाइम थोड़ा इतना इजी नहीं है, थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा, तो थोड़ा सोच विचार करते हैं. Can I take alpha gamma common? So I get alpha plus gamma. Do you agree, kids? Do you agree? Yes, sir. Next. Look at this guy, look at this guy. I'll take alpha beta common, so I get beta plus alpha. I hope everybody's understanding. And finally, I can take, look at these two guys. I can take beta gamma common, so I get beta plus gamma. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Now look at this, everyone. Alpha plus beta plus gamma 0 है. आप check कर लो. So can I say kids, alpha plus gamma will be minus beta? Alpha plus beta will be minus gamma? अरे हाँ बोलो ना. Yes, sir. So can't we directly split it and then do this? We'll directly get the answer. What split it? Like alpha gamma and alpha plus gamma upon alpha beta gamma. Like split all the three. अरे हो गया, सम खत्म हो गया. I just have to do it now. I can do it orally here, but I'm just telling Yeah, you. yeah, I know, but if Yeah. we do that, we'll get it Okay. directly. So see, alpha plus gamma will be minus beta here. So you know what will happen here? I'll get minus beta, so I'll get minus alpha beta gamma. Similarly, ये orally हो जाता है, फिर मैं करके बता रहा हूँ कि कुछ बच्चों को नहीं समझेगा. Alpha plus gamma is minus beta, तो ये minus alpha beta gamma. Now beta plus alpha, what is beta plus alpha again? Minus gamma है ना kids? Yes, sir. Yes, So sir. again minus alpha beta gamma, and beta plus gamma is minus alpha, so I get minus alpha beta gamma upon नीचे आ गया alpha beta gamma. So it become minus of 3 times of alpha beta gamma upon alpha beta gamma. So the answer is straight away minus 3. Is it clear, kids? सबको समझा गया? Yes, sir. ओके ठीक है. तो किस ये एक आपका बेसिकली हो जाता है, अच्छा प्रॉब्लम था और एग्जाम ऐसे हम लाते भी रहते हैं, वो अलग बात है. ओके. उसके बाद किसी ने मुझे 54th प्रॉब्लम भी पूछा था. 54th प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो बहुत इजी प्रॉब्लम था, फिर भी मैं बता देता हूं क्या है. ओके, लिखा क्या है? इफ x is real, x is real, show that this expression, that is y, can take all the values which do not lie in the interval 4 to 12. मतलब y does not take any value between 4 to 12. Indirectly इसका मीनिंग क्या है? y belongs to what? Minus infinity to 4 union 12 to infinity. Is that true? Yes, sir. Yes. और ऐसे समझो कितने किया रे बाबा, रेंज फाइंड करना है, और रेंज फाइंड करने को तो हमने कितनी बार किया है. आई कैन शिफ्ट दिस गाय हियर, सो आई गेट x square plus 2x minus 11 plus xy minus 3y. So I get x square, I'll take यहां से x को कॉमन, so I get 2 plus y into x. मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया ना स्पेल, साइन मिस्टेक? So it will be minus y. ओ या ये यहाँ पर आएगा ना, माइनस हो जाएगा. सॉरी मेरा मिस्टेक है, वही मैं सोचा, क्योंकि ये यहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा, हाँ एक्स वाई, हाँ ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाना चाहिए. या तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन, सॉरी तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन, तो ये आपका हो गया प्लस साइन. तो यहां से जब x को कॉमन निकालेंगे तो यू गेट 2 minus y. Plus 3y minus x. Is it x का quadratic, kids? Yes, sir. And since x belongs to real number, can I say discriminant will be greater than or equal to 0? हाँ के नहीं? Yes, sir. और फिर आप वेवी कर्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. इज इट ओके? Yes, sir. तो ये मैं चाहूंगा खुद ट्राई करने का है, क्योंकि टेस्ट आपको खुद को ही देना है, मैं नहीं देने वाला टेस्ट. इज इट ओके? ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके. आगे कुछ और समझे, फटाफट करके बता देता हूं. आई थिंक आर्काइव्स में
एक मिनट, या आर्काइव्स में एक क्वेश्चन था, मैंने जानबूझकर दिया था, आई डोंट नो किसको, कुछ बच्चों को शायद आया होगा और काफी लोग को नहीं आया होगा, पता नहीं। ये सब मैंने जानबूझकर दिया था क्योंकि मैं देखना चाहता था कितने बच्चों को ये कर पाए हैं। कुछ लोगों ने ट्राई किया कि डिड यू गेट दिस आंसर? Yes, sir. Yes, sir. गुड। क्या मेथड किया था आप लोग ने, कोई बताएगा मुझे? So you use Sridharacharya to get the roots, and then it's complex, so you use omega and omega square. Smart, very good. See, I'll apply Sridharacharya here. It's quite similar to your complex number, complex cubical affinity. याद है कुछ complex number में? Minus b plus minus under root of b का square, that is 1, b square minus 4ac upon 2a, that is 2. तो आपको x मिलेगा 1 plus minus root of minus 3, root of minus 3 will be root 3i upon 2. तो आपको x जो मिल रहा है वो है 1 minus root 3i by 2, और दूसरा मिल रहा है 1 plus root 3i by 2. ना थोड़ा रिकलेक्ट करते हैं। अगर आपको याद होगा, हमने जब ये सॉल्व किया था हमारे क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू मिला था वो था -1 प्लस रूट 3i by 2, एंड दूसरा था -1 माइनस रूट 3i by 2. डू यू रिमेंबर? सच्ची बोल रहा, ऐसा आया था। So I had called this as omega. Do you remember? Yes, sir. Yes, sir. And this was omega square. तो मैं इसको अल्फा बोलता था, अल्फा इज ओमेगा एंड बीटा इज ओमेगा स्क्वायर. अब यहाँ क्या हो जाएगा? चेक दिस आउट एंड चेक दिस आउट. यू विल ट्राई सीइंग दैट दिस हियर x कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ ओमेगा. डू यू एग्री? यहाँ पर अल्फा माइनस ऑफ ओमेगा हो गया. डू यू एग्री? Yes, sir. नेक्स्ट, और यहाँ पर ये बीटा, आपका बीटा हो जाएगा स्ट्रेट अवे. आपने इसको बोला था ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर. डू यू एग्री? Yes, sir. Now it is done, audience. Check it out. Minus omega whole raised to 2009 and minus omega square whole raised to 2009. 2009 है तो odd है, पावर तो बाहर आ जाए, तो 2009, ये odd है तो 2000, ये हो गया 4018. And you all will agree with me. I can write this as, you know what? इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? चेक करो. 18 3 से डिवाइड करो तो यहां पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा रेज़ टू 2007. दिस इज डिविजिबल बाय 3. चेक कर लो, है ना किड्स? दिस इज डिविजिबल बाय 3. इज इट ट्रू? 18, या तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा. सिमिलरली दिस ओमेगा रेज़ टू, आई राइट दिस एज 4017 इंटू ओमेगा. चेक करो, ये भी डिविजिबल बाय 3 है ना किड्स? अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. तो ऑटोमेटिकली ये इन दोनों का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा. इज इट ओके? क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 है. समझ रहा है क्या? Yes, sir. गुड. सो व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आपका 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, एंड ओमेगा. तो व्हाट आई गेट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा. इज दैट ट्रू? अरे हाँ के नहीं? Yes, sir. And kids, this is minus omega, this is minus omega square. So actually it is nothing but alpha plus beta. Do you agree? Do you agree? Yes, sir. Now, अगर मैंने दोनों को ऐड किया, will I get the answer 1? Or else I can straight away say, rather than doing this straight away, I'll take -1 common. What I get? Omega square plus omega. हाँ क्या नहीं? याद आ रहा है? What is omega square plus omega का वैल्यू? -1. -1. So the answer becomes 1. Is that true? Is that true? Yes, sir. Now such questions are very common in your JEE examinations. अल्फा बीटा वाले प्रॉब्लम्स. आपको हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स करेंगे तभी भी हम ये सब वापस करेंगे और बहुत सारे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स करेंगे बाद में जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स करेंगे. ओके, बट मैंने एक ऐसे ग्लिम्स बता दिया मैंने कि ऐसे कर सकते हैं. इज इट ओके किड्स? Yes, sir. ओके. उसके बाद
किसी बच्चे ने मुझे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था आपके आर्काइव से। ओके, अभी है ना, मुझे तो ये सम थोड़ा इजी लग रहा था। मैं खाली आपको हिंट दे देता हूं, जिन बच्चों को ये सम नहीं आया मैं आपको हिंट दे रहा हूं, खुद ट्राई करना। अगर फिर भी नहीं आया तो मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा आप खुद ट्राई करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको ही ट्राई करना है। क्या पूछा है? लेट S be the set of all integral values of C for which one root of the equation lies in the interval 0 to 2 and the other root lies in the interval 2 to 3. मतलब क्या बोल रहा है बता दो। देखो अभी यहां पर दो केसेस हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है या तो एक ऐसा हो सकता है। दो केस क्यों होगा? क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है नेगेटिव पता नहीं, इसलिए दो केसेस हो गए। इज इट ओके किड्स? इज इट ओके? Yes, sir. Now what they are saying, one root, एक रूट लिखा है lies in the interval 0 to 2, एक इंटरवल 0 2 के बीच में है, वो ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट, दूसरा रूट इज इन द इंटरवल 2 to 3, so दूसरा रूट इज इन द इंटरवल 2 to 3. Do you understand? One root between 0 to 2 and the other root between 2 to 3. Do you understand? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, one root between 0 to 2 and the other root is between 2 to 3. So these any cases, okay? Now I think there is nothing great about it. I think you all will agree with me. F of 0 is positive and F of 2 is negative. So can I say F of 0 into F of 2 will be negative? Do you agree? Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, f of 2 is negative and f of 3 is positive. So similarly, I can say f of 2 into f of 3 will be negative. Do you agree? F of 0 positive, f of 2 negative, multiplication will be negative. F of 2 negative, f of 3 positive, multiplication will be negative. Does that make sense? Yes, sir. So now just put x as 0, you get f of 0, put x as 2, you get f of 2, multiply करो। तो solve करने के बाद आपको कुछ तो values मिलेंगे यहाँ से। क्या आता है यार? कुछ तो आता है यहाँ से। हाँ, यहाँ से सॉल्व का आई थिंक सी का वैल्यू कुछ ऐसा मिलेगा आपको। साइन स्कीम करना पड़ेगा, वीवी कव करना पड़ेगा, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। आई एम नॉट डूइंग इट। और इसको सॉल्व करने के बाद आपको सी का जो वैल्यू मिलेगा, मिलेगा आपको 49/4 से लेकर 24 के बीच में। और आपको क्या करना है यहाँ पर? आपको यहाँ पर पूछा क्या उन्होंने, मैं पहले पढ़ लेता हूँ उन्होंने क्या पूछा है। ओके okay, then the number of elements in S. S क्या है? S is set of all integral values of C for which one root of the equation. Okay, S क्या है? Set of all integral values. S is set of all integral values of C. अब आप मुझे एक बात बता दो किड्स, ये आपका 49/4 है, ये आपका 4/2, 4 to 24 है, तो कॉमन क्या होगा? C का कॉमन आंसर क्या है? व्हाट इज C का आंसर? कॉमन वैल्यू क्या है? 49/4. हाँ, 49/4 से लेकर 24। 49/4 मतलब 12 से ज्यादा है ना कि थोड़ा सा? 12 से ज्यादा है कि नहीं? Yes, sir. So what are the numbers? 13 I can take, 14, all these numbers till 23 है ना? So how many integral values? 11. So the integral values of C is 11. 11 values मिलेंगे आपको। Is it clear? अरे is it clear? Yes, sir. चलो अच्छी बात है। ओके, एक मिनट। अब कुछ बच्चे ना, उन्होंने आई थिंक प्रीवियस डाउट सॉल्विंग अटेंड नहीं किया है, इसलिए वही सम वहां लोग डाउट पूछ रहे हैं मेरे को, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था डाउट सॉल्विंग में। ओके, और एक सम किसी ने मुझे पूछा तो वही बता देता हूं मैं। ओके, 83 प्रॉब्लम 83, हाँ 83 किसी ने पूछा था दैट। अब ये भी सम है मेरे हिसाब से तो आना चाहिए था, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन आइडेंटिटी। 83 प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन आइडेंटिटी। ओके, लिखा क्या है? दिस इज आइडेंटिटी इन एक्स, दिस इज आइडेंटिटी इन एक्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको यहां पर एक्स का क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। डू यू एग्री? अरे हाँ क्या नहीं? Yes, sir. ओके,
तो आपको यहाँ पर x का क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा. आई डोंट नो वेस्ट माय टाइम, तो मैं आपको बता देता हूँ. आप उसको ओपन करोगे, यू जस्ट ओपन इट. ओके, आप इसको ओपन करना. ओके, जस्ट डू इट. आप इसको एक्सपैंड करना, इसको एक्सपैंड करना, इसको एक्सपैंड करके जब वो क्वाड्रेटिक, तो x का एक क्वाड्रेटिक बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा. a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा बनेगा. फिर बनेगा प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3b. ओपन करना तो आपको ये क्वाड्रेटिक मिलेगा, x का क्वाड्रेटिक. तो कुछ ऐसा आपको मिलेगा. अब नाउ यू ऑल टेल मी, when will it become an identity in x? When will it become identity in x? Each coefficient is equal to 0. Each coefficient should be 0. Do you agree? Do you agree, audience? Yeah. तो आपका हर एक कोएफिशिएंट 0 होगा ना, तब जाके होता है. इसका मतलब क्या हो गया, आपका a का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, माइनस बी हो गया. तो अगर आप माइनस बी यहाँ पुट करोगे तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 1. इसको फैक्टराइज अगर करूंगा, आई एम जस्ट पुटिंग ए वैल्यू हियर. तो मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, 2b स्क्वायर माइनस 2b माइनस b प्लस 1. तो मुझे 2b कॉमन निकाला तो मुझे मिलेगा b माइनस 1 माइनस 1 यहाँ पर आ गया b माइनस 1. तो मुझे मिलेगा b माइनस 1 इंटू 2b माइनस 1. तो मेरा b क्या हो गया 1 और आपका b क्या हो गया 1/2. उन्होंने पूछा कि आपको बता देता हूँ, they asked us number of values of पेयर ऑफ ए एंड बी. वो लोग ए और बी का पेयर पूछ रहे हैं. ए और बी के क्या क्या पेयर्स पॉसिबल है, कितने पेयर्स पॉसिबल है. सो द क्वेश्चन इज ए और बी के कितने पेयर्स पॉसिबल है, कितने पेयर्स पॉसिबल है. अब देख रहे हैं यहाँ पर एक भी पॉसिबल नहीं होगा. देखो क्या प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ही अगर आप यहाँ पर ए को 1 पुट कर दोगे, सपोज अगर आप ए को 1 पुट करोगे, पहली बात, सॉरी बी है. ओके, नाउ चेक दिस आउट. अब कोई बच्चा अगर ये वाला डेटा यूज करता है यहाँ पर, तो उसको ये इनमें से कोई एक वैल्यू आना चाहिए. पुट ए एज माइनस बी. तो यहां पर आ गया माइनस बी का क्यूब, माइनस बी. सो गेट माइनस बी क्यूब माइनस 2b. आपको देख के तो समझ ही जाता है, फिर भी बता रहा हूं मैं. बी क्यूब प्लस 2b माइनस 1. नाउ आई थिंक सबको याद होगा, तीनों के पास कॉमन वैल्यू होना चाहिए, तभी जाके आइडेंटिटी बनेगा. अब चेक करना, अगर आप b को 1 पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होता है. इज दैट ट्रू? पुट b as 1, is it satisfying? No, sir. No, it does not satisfy. Put b as half, is it satisfying? आप b को हाफ पुट करना, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? No, sir. So what has happened is, I used this condition in the first guy and in the second guy. When I used the first guy, I got these two values, and I use this condition in the third guy and getting some equation. Now, if they do have a common values and this b ka value has to satisfy this equation, but is not at all satisfying it. So what do you understand by this? It does not have any pair of a and b. हाँ के नहीं? मतलब ये आइडेंटिटी नहीं बनेगा a और x में. Do you agree? So no values of a and b. Do you agree, kids? Yes, sir. a और b का ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं होगा जिससे वो आइडेंटिटी बनेगा, क्योंकि हमने सब पॉसिबिलिटी ट्राई कर लिया. पहले से इंडिविजुअल सबको 0 किया, a को माइनस बी पुट करके मुझे b का वैल्यू मिला, a माइनस बी मैंने यहां भी पुट किया, and I got some equation. And even if I try putting b का, now this b value has to satisfy this, but it is not satisfying it. So automatically there cannot be any values of a and b which will make this quadratic as an identity. Is it clear for all? Is it clear for all? Yes, sir. ठीक है. So I think एक मिनट और, एक मिनट रुका. One minute. ओके, आई थिंक अभी तो और तो कुछ नहीं. ठीक है. ओके किड्स, तो यही था आपका डाउट्स, और अगर कुछ डाउट आए तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा. इज इट ओके? Yes, sir. एक मिनट. या